Students, today we are in our number problem number 2.12. Hi, how are you? What will be wavelength of a ball? First of all, we have to take data from the question. What will be the wavelength of a ball of having mass? Here mass is 0.1 kilogram. Velocity 10 meter per second. Now first of all we have to check kilogram in MKS system, meter per second in MKS system. Alright, so our answer will be in MKS meter. Here H. Yes, we have to derive wavelength. So formula will be according to the Broglie equation. H is a constant which is called Planck constant, 6.626 10 raised to minus 34 joule into second रहेगा. Here H equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 joule into second. Yes, which is also in MKS system, upon 0.1 into 10. 0.1 into 10. So 1 upon 10 into 10, it will be cut. So here is 1. What is joule? Joule क्या होता है? किलोग्राम into meter square upon second square होता है. So here instead of joule there should be kilogram into meter square per second square into second upon kilogram into meter per second. upon का upon up जाएगा second. here upon का अपन छेद में यहाँ पे अपन में आ जाएगा एज अ सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर कट हो जाएगा. किलोग्राम कट मीटर 2 टाइम्स. हियर मीटर 1 टाइम्स कट. सो आंसर विल बी इन मीटर. सो दिस इज आवर आंसर. wavelength of the ball when our ball is 0.1 kg moving. So इसका wavelength बहुत ही short आएगा. We discussed in the de Broglie principle, which is not applicable for huge mass having substances. So इसके लिए वो applicable नहीं रहेगा. इसका wavelength बहुत ही short आ रहा है. Wavelength is very short here. Now question number 2.13. Mass of electron is given here 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. If its Ke क्या होता है? Kinetic energy is given 3 into 10 raised to minus 25 joule. Calculate its wavelength. जो इलेक्ट्रॉन मूविंग हो रहा है उसका मास दिया हुआ है, देन काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है. सो उसका वेवलेंथ विल बी हाउ मच? हियर एच प्लैंक कांस्टेंट रहेगा 6.626 10 raised to minus 34 joule into second. Formula of the kinetic energy. Here velocity is not given. For getting wavelength, mass is given, Planck constant is constant, velocity is not given in the question. So first of all we have to derive velocity of electron. So velocity क्या रहेगा? So here kinetic energy is 1/2 mv square. So 3 into 10 raised to minus 25. So v square equal to 2 into 3 into 10 raised to minus 25 upon m. m क्या रहेगा? mass. Here mass is 9.1 10 raised to minus 31. So 6 divided by 9.1 gives 0.6593 minus 31. In upward it will be plus. ये वाला माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा. 31 में से 25 कट होगा. So 10 raised to 6 रहेगा. So both साइड स्क्वायर रूट निकालना है.
So square root of it gives 0.6593 का स्क्वायर रूट रहेगा 0.8119. 10⁶ का स्क्वायर रूट के लिए रेस्ट शुड बी डिवाइड बाय 1/2. सो ये वाला 3 रहेगा. सो 0.8119 मल्टीप्लाई बाय 1000. सो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. सो 811.9 मीटर मीन्स 9 इज मोर देन 5. सो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा. सो 812 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रहेगा. देन फॉर गेटिंग वेवलेंथ lambda is equal to h upon mv. H is Planck constant 6.626 10⁻⁻34 joule into second. Mass of electron 9.1 10⁻⁻31 kg. Velocity 812 meter per second. So here 6.626 divided by 9.1 then 812. So 0.0008967 आएगा. Here is -34, -31 in upward will be plus. From -34 plus 31 cut, then remaining -3 रहेगा. Now listen, here point moves on right hand side. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6 digit. So यहाँ पे आ जाएगा. ये वाला point 6 digit move हो चुका है. So here 10⁻⁻6 multiply होगा. So -6 and -3 -9. So -9 meter means nanometer. If answer is asked in angstrom, so here our point moves 7 digit here. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 10⁻⁻7 यहाँ पे आ जाएगा. -3 and -7 -10. So 10⁻⁻10 meter means angstrom रहेगा. So wavelength of the electron 8967 angstrom रहेगा. In nanometer 896.7 nanometer रहेगा. This is our answer. Now question number 2.14. Calculate the mass of photon with wavelength 3.6 angstrom. What is photon? It's a particle of light. लाइट का जो पार्टिकल होता है वो फोटोन. मास ऑफ इट वी हैव टू डिराइव. ओनली हियर वेवलेंथ इज गिवन 3.6 एंगस्ट्रॉम. 1 angstrom equal to 10⁻⁻10 meter. So we have to derive mass and velocity of the light. Photon is a particle of light, and here wavelength is given. So velocity of light everybody knows 3 into 10⁻⁸ meter per second. So velocity of photon equal to velocity of light रहेगा. So lambda according to the Broglie equation, lambda equal to h upon mv. So m comes here, lambda here. So m equal to h upon lambda into v. Here where h lambda is the Planck constant 6.626 into 10⁻⁻34. Planck constant joule into second. Wavelength 3.6 10⁻⁻10. Now remember, every unit should be in the same system. Otherwise in MKS, otherwise in CGS. So everything is in MKS. 3 into 10⁻⁸ meter per second. Joule means kilogram into meter square per second square into second upon meter, and meter into second. So meter square here, meter square cut second square upon. So ये वाला upon यहाँ पे जाएगा. second square 2 time, second square 2 time cut हो जाएगा. Kilogram is remaining. So our unit will be for mass kilogram. 6.626 divided by 3.6 then 3. So gives 0.6135. 10⁻⁻34 minus 10 moves here upward. It will be plus 10⁻⁸ here as a -8.
34 प्लस 8 42 रहेगा, माइनस 42 प्लस 10 so minus 32. One digit when we move on right hand side, so 6.135 into 10 raised to minus 1. So minus 32 and minus 1 will be minus 33 kilogram. This is our answer. In our book there is mistake, minus 29 kg, which is wrong. Correct it. This is our final answer. Now most MP question we are going to discuss. Now very most MP question, Heisenberg's name of scientist. Heisenberg uncertainty principle. What is uncertainty? In the measurement comes a defect, like distance, velocity में defect आएगा डेल्टा वी, ये वाला डिफेक्ट, मोमेंटम में डिफेक्ट आएगा डेल्टा पी. इन द मेजरमेंट, दैट इज एक्यूरेट प्लेस, एक्यूरेट पोजीशन, एक्यूरेट प्लेस, एक्यूरेट डिस्टेंस, एक्यूरेट वेलोसिटी and accurate momentum we can't derive, that is uncertainty. Full name of it is Werner Heisenberg. A German physicist in 1927 studied uncertainty principle. Uncertainty principle was given by Werner Heisenberg, which is consequence of dual behavior of matter and radiation. जो पार्टिकल होता है लाइक फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड एनी एटम्स which is has mass, so it behaves like a matter. इलेक्ट्रॉन होता है एक्चुअली वो पार्टिकल, उसका मास होता है, सो ये वाला मैटर हो गया. बट उसका जो पथ होता है ये वाला वेव व्हीकल होता है, वेव नेचर. So it like a radiation होता है. Yes, now this is our principle. It states that it is impossible to determine simultaneously exact position and exact momentum or velocity of electron. जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका exact position and at a time, साइमल्टेनियसली का मीनिंग रहता है एट ए टाइम. जब व्हेन वी डिराइव डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो एट ए टाइम वेलोसिटी और मोमेंटम वी कांट डिराइव एक्यूरेटली. कोई भी पार्टिकल होता है उसका एक्यूरेट पोजीशन, प्लेस, वेलोसिटी, मोमेंटम एक ही साथ डिराइव नहीं कर सकते. यस, इट स्टडीज. ये वाला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया. जो कोई प्लेन होगा इन द स्काई, सो उसका पोजीशन, वेलोसिटी एग्जैक्ट डिराइव कर सकते. इन द मिलिट्री देयर इज रडार. एवरीबॉडी नोज अबाउट रडार. रडार gives radiation, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो रिलीज करेगा. जो कोई भी प्लेन इन आवर एरिया which is passing, so radiation will be reflect from there, and in the monitor we can see plane is coming or going, and exact place we can derive. Why? Here size of the plane is huge, so we are using more wavelength having radiation. यहाँ से reflect होके आ जाएगा in the screen we can see, and velocity, accurate velocity at a time. plane यहाँ पे कितने distance पे जा रहा है, उसका velocity कितना है, then after momentum कितना है, we can define some. But plane is huge in mass, but our particle is very small in size.
लाइक इलेक्ट्रॉन, इसका मास वेरी लेस रहता है। सो इलेक्ट्रॉन का प्लेस और वेलोसिटी एक ही साथ एक्यूरेट डिराइव नहीं कर सकते। यस, वेलोसिटी, उसका मास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मोमेंटम, वेलोसिटी और मोमेंटम एंड प्लेस एक ही साथ वी कांट डिराइव। दिस इज आवर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन वर्ड दिस इज आवर प्रिंसिपल, बट मैथमेटिकली it can be given as an equation। x क्या रहता है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल रहता है, उसमें मेजरमेंट में जो डिफेक्ट आएगा ये वाला डिफेक्ट डेल्टा x अनसर्टेनिटी रहेगा। सपोज एक्यूरेट डिस्टेंस इज 1.5 मीटर, बट इसमें डिफेक्ट आएगा सपोज, सो ये वाला डेल्टा x हो गया, डिफेक्ट रहेगा। एट ए टाइम वेलोसिटी जो होता है एक्यूरेट नहीं मिलेगा, इसमें डिफेक्ट रहेगा डेल्टा वी। मोमेंटम होता है, सो ये मोमेंटम में डिफेक्ट रहेगा डेल्टा पी। सो डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन प्लेस एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम रहेगा। वी आर ट्राइंग टू मेजर प्लेस एंड velocity at a time accurately, but we can't. In the measurement there will be defect occurs. In the measurement of distance defect is delta x. In the measurement of momentum, momentum क्या होता है, मास और वेलोसिटी का क्रॉस, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट रहेगा ये वाला मोमेंटम, इसमें भी डिफेक्ट रहेगा। यस, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी में डिफेक्ट आएगा, मास में चेंज नहीं आएगा। P इक्वल टू mv, सो मास चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में डिफेक्ट डेल्टा v रहेगा, सो मोमेंटम में डिफेक्ट डेल्टा p आएगा। सो व्हेन वी ट्राई टू मेजर exact position of electron and exact momentum of at a time, so it will be product is more than h upon 4 pi। जो डिस्टेंस होता है उसका मेजरमेंट में डिफेक्ट मीन्स अनसर्टेनिटी डेल्टा x, उसका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा p, उसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो h मिनिमम h अपॉन 4 पाई। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, सो मिनिमम इतना डिफेक्ट तो रहेगा, इससे ज्यादा भी इक्वल टू और मोर देन h अपॉन 4 पाई रहेगा। यस, दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ P इक्वल टू mv, मास एंड वेलोसिटी एट x डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या रहेगा, 8x डिस्टेंस पे पार्टिकल रहेगा, सो उसका वेलोसिटी vx। So delta p equal to m into vx. Here is delta. When we apply delta, so ये क्या रहेगा, delta p equal to m, मास में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। So delta p equal to m into v into delta x. Put down here this value. So what happens here? Delta x into m into delta vx greater than or equal to h upon 4 pi. So delta x into delta vx greater than or equal to h upon 4 pi m रहेगा। Yes, this is uncertainty principle। दोनों का एक डिक्रीज हो जाएगा तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिनिमम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन h अपॉन 4 पाई m रहेगा। कोई भी पार्टिकल का एग्जैक्ट प्लेस और वेलोसिटी मिल ही नहीं सकता। वेयर डेल्टा x क्या होता है, अनसर्टेनिटी, जो पोजीशन का मेजरमेंट होता है उसमें जो डिफेक्ट आ रहा है इन द मेजरमेंट ऑफ प्लेस
ये वाला अनसर्टेनिटी इन पोजीशन रहेगा। डेल्टा पी एक्स, डिस्टेंस एक्स पे जो पार्टिकल रहता है उसका मोमेंटम में डिफेक्ट रहेगा डेल्टा पी एक्स, इसका वेलोसिटी में डिफेक्ट रहेगा डेल्टा वी एक्स। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम and uncertainty in velocity of the particle. If the position of the electron is known with high degree, if position of electron, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, so electron is very small particle. So what we have to do, if we are taking more wavelength having the radiation, then we can't get exact place. जो पार्टिकल होता है लाइट प्लेन, यहाँ से रेडिएशन रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस मिलना चाहिए। सो प्लेन इज यूजिंग साइज, सो वी आर यूजिंग मोर वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा। बट फॉर गेटिंग एग्जैक्ट प्लेस ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे जो बड़ा वाला वेवलेंथ लेंगे तो सपोज यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ। सो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद एग्जैक्ट प्लेस डिफाइन कर सकते। इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉन, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी, इसका प्लेस, स्मॉल पार्टिकल का प्लेस एग्जैक्ट डिफाइन करने के लिए वेवलेंथ शुड बी लेस। सो इसमें क्या होगा, डेल्टा एक्स डिक्रीज हो जाएगा, अनसर्टिनिटी लेस हो जाएगा, वेवलेंथ छोटा वाला ले लिया, सो एक्सेक्ट बट तब भी थोड़ा सा अनसर्टिनिटी रहेगा। सो डेल्टा एक्स डिक्रीज हो जाएगा बट डेल्टा पी हाईली इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? लिसन, जो वेवलेंथ होता है शॉर्ट रहेगा, सो पी मोमेंटम इक्वल टू एच अपॉन लेमड़ा रहता है। सो लेमड़ा शॉर्ट हो जाएगा तो उसका मोमेंटम हाई हो जाएगा। हाई मोमेंटम हैविंग रेडिएशन विल बी बम्बार्ड हियर। सो उसका जो वेलोसिटी होता है, ये क्या होता है, कोई एक बॉल, यहाँ पे ये वाला स्टेबल, ये वाला कमिंग विथ हाई वेलोसिटी, तो उसका मोमेंटम होगा, ये वाला इनके साथ इंटरेक्ट होगा, कोलिशन होगा, सो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। सो ये वाला रेडिएशन, इसका वेवलेंथ लेस है बट उसका मोमेंटम हाई हो जाएगा। सो हाई मोमेंटम हैविंग रेडिएशन इंटरेक्ट विथ दिस इलेक्ट्रॉन, सो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इंक्रीज होगा, मास चेंज नहीं होगा पर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। सो उसका मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी आ जाएगा। एक डिक्रीज करेंगे तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम दोनों का अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लिकेशन h अपॉन 4 पाई जितना रहेगा। When we try to get exact place, so we are using very short wavelength, so momentum increase हो जाएगा। So uncertainty in momentum, in velocity, क्योंकि ये वाला रेडिएशन यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, so suppose उसका वेलोसिटी भी था, so इंटरेक्ट होने के बाद ये वाला स्टेबल था, इसके साथ ये वाला कोलाइड होगा, सो क्या होगा, आफ्टर कोलिशन इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। सो टाइनी पार्टिकल पे रेडिएशन आएगा तो उसका वेलोसिटी हाईली इंक्रीज हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगा। एक अनसर्टेनिटी डिक्रीज होगा तो दूसरा एट ए टाइम बहुत इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सपोज लाइक दिस 2 into 10 20 रहेगा। सपोज ये वाला 1 हो गया तो ये वाला 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 तो रहना ही चाहिए। एक डिक्रीज हुआ तो दूसरा अनसर्टेनिटी बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, डेल्टा एक्स स्मॉल हो जाएगा, देन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन। एक अनसर्टेनिटी डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा पी लेंगे तो h/4 पाई रहेगा,
डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा वी लेंगे तो h/4πm जितना रहेगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा एट टाइम इंक्रीज हो जाएगा। कितना भी ट्राई कर लो, एक अनसर्टेनिटी डिक्रीज हो जाएगा तो दूसरा इंक्रीज होएगा। Now on the other hand, if the velocity of the electron is known, delta x into delta vx, at x प्लेस पे जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये वाला अनसर्टेनिटी डेल्टा vx मिनिमम और मोर देन h/4πm रहेगा। If delta v is precisely known, delta v velocity of electron is known, then value of delta vx uncertainty in velocity is very small. Thus इलेक्ट्रॉन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन हो जाएगा, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी डिक्रीज होगा तो दूसरा वाला बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। सो पोजीशन में जो डिफेक्ट आएगा इन द मेजरमेंट ऑफ प्लेस, पोजीशन ये वाला बड़ा हो जाएगा, एक डिक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा, क्योंकि मिनिमम h/4πm तो रहेगा ही। Thus we carry out some physical measurement and on the electron's position or velocity, the outcome will always depict or fuzzy or blur here, and this principle is also practically proven on the experiment done on the electrons। जो इलेक्ट्रॉन का प्लेस होता है, डिस्टेंस होता है, उसका मेजरमेंट में डिफेक्ट डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी आएगा, उसका वेलोसिटी में डेल्टा वी रहेगा, and this defect is very large. So for any tiny particle which is small and dimensionless like electron, so picture will be fuzzy or blur, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसका साइज इतना छोटा होता है कि एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एग्जैक्ट वेलोसिटी और मोमेंटम we can't derive, and this principle practically also proven. The uncertainty principle can be best understood with the help of an example. Suppose you are asked to measure thickness of this sheet of paper. जो कोई पेपर होता है उसका thickness we have to derive. कोई एक पेपर कागज होता है उसका thickness we have to derive by using some scale, meter scale. जो पेपर होता है उसका थिकनेस we have to derive, ऐसा आस्क्ड किया हुआ है। अनमार्क्ड पेपर स्टिक का कोई स्केल लेने के बाद स्केल के साथ we can't, कोई भी स्केल होगा so we can't measure thickness of this paper. Unmarked metal stick, obviously the result obtained would be extremely inaccurate and meaningless, क्योंकि अपना वाला जो मीटर और स्केल होता है इसमें इसका डायमेंशन ही नहीं आ रहा है। यहाँ 1 मिलीमीटर मिनिमम वी कैन डिराइव, बट पेपर का थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी छोटा रहेगा। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनी एक्यूरेसी you should use an instrument graduated in units smaller than the thickness of sheet. जो पेपर का थिकनेस होता है इससे भी छोटा वाला यूनिट वाला स्केल यूज करना पड़ेगा, but it's not possible. Analogy in word, to determine another position of an electron we must use a meter stick calibrated in unit of smaller than the dimension of electron. जो इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन होता है उससे छोटा वाला कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, बट इट इज वेरी स्मॉल एंड डायमेंशनलेस,
इलेक्ट्रॉन का मास वेरी स्मॉल होता है, विच इज डायमेंशनलेस कह सकते 9.109 10⁻³ ग्राम. Actually this mass is nothing, so which is dimensionless, so accuracy नहीं आ रहा. In another word we can say जो अपना इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा वो बहुत ही छोटा होना चाहिए for the measurement of tiny particles. To observe an electron we can illuminate it with light. यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इसका डिस्टेंस डिराइव करना है. So like a big object we have to pass from the radar. क्या होगा? रेडिएशन आएगा. ये वाला वेव यहाँ से आफ्टर कोलिशन रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड न्यूटन्स लॉ के हिसाब से इसका वेलोसिटी और डिस्टेंस एग्जैक्ट मिल सकता है क्योंकि ये वाला बिग रहेगा. सो बिग वेवलेंथ आएगा. सो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद एग्जैक्ट प्लेस डिफाइन कर सकते हैं. बट इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल इन साइज. सो बिग वेवलेंथ लेंगे सो यहाँ से इंटरेक्ट नहीं करेगा. सो फॉर गेटिंग एग्जैक्ट डिस्टेंस वी हैव टू यूज लाइट हैविंग वेरी शॉर्ट वेवलेंथ. सो ये वाला क्या करेगा? यहाँ कोलाइड होगा. इसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा. सो उसका डिस्टेंस जो x होता है इसका मेजरमेंट में डिफेक्ट डेल्टा x रहेगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा. बट उसका वेवलेंथ जो रेडिएशन यहाँ पे जो पार्टिकल होता है उसका स्मॉल साइज की वजह से वेवलेंथ शॉर्ट लेना पड़ेगा. वेवलेंथ शॉर्ट होगा सो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ जाएगा. सो जो प्लेस में अनसर्टेनिटी डिफेक्ट आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, नो डाउट. सो एग्जैक्ट प्लेस डिफाइन हो जाएगा बट थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगा. बट ये डिस्टेंस पोजीशन एक्यूरेट नॉन करने के लिए क्या करेंगे? वेवलेंथ शॉर्ट कर दिया. सो जिसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है उसका मोमेंटम ज़्यादा रहता है. सो हाईली मोमेंटम हैविंग रेडिएशन इसके साथ कोलाइड होगा. सो उसका एनर्जी लाइक दिस, वन स्टोन इज स्टेबल, अनदर इज इन हाई स्पीड. ये हाई स्पीड वाला स्टोन इसके साथ कोलाइड होगा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, इसका डिग्री. सो हाई एनर्जी वाला वेवलेंथ इसके ऊपर आएगा. सो उसका वेलोसिटी जो v था वो अनसर्टेन डेल्टा v हो जाएगा. मास चेंज नहीं होगा बट इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. सो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी डेल्टा v आएगा. सो ऑब्वियसली उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. सो प्लेस एंड वेलोसिटी और मोमेंटम एक ही साथ एक्यूरेट डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि एक एक्यूरेट होने के बाद दूसरा बड़ा अनसर्टेन हो जाएगा. The light used must have a wavelength smaller than the dimension of electron. इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है इससे भी छोटा वाला वेवलेंथ यूज करना पड़ेगा तभी तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा. द हाई मोमेंटम फोटॉन्स ऑफ सनलाइट, वेवलेंथ शॉर्ट हो गया सो मोमेंटम हाई हो गया. सो हाई मोमेंटम वाला वेव इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वुड चेंज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस स्टोन. ये वाला स्टोन इसके साथ कोलाइड होगा तो उसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा लाइक दिस. सो उसका डायमेंशन के हिसाब से छोटा वाला हाईली एनर्जी वाला रेडिएशन यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, कोलाइड होगा. सो उसका वेलोसिटी एंड मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा. सो दोनों एक ही साथ प्लेस वेलोसिटी प्लेस एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली इन by collision and would change the energy of electron by collision. In this process we no doubt would be able to calculate the position of the electron but we would know very little about the velocity of electron after the collision.
कोलिशन के बाद उसका वेलोसिटी में बड़ा चेंज आ जाएगा। ये एक अनसर्टेनिटी डिक्रीज करेंगे तो दूसरा वाला बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस सेंटेंस इज गिवन मैथमेटिकली डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इक्वल टू h अपॉन 4πm। एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना भी ट्राई कर लो मिनिमम उतना तो रहेगा ही। और दूसरा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4π रहेगा रहेगा रहेगा। डेल्टा एक्स डिक्रीज करेंगे डेल्टा पी इंक्रीज हो जाएगा, डेल्टा पी डिक्रीज करेंगे डेल्टा एक्स इंक्रीज हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिनिमम h अपॉन 4π रहेगा रहेगा रहेगा। This is the uncertainty principle given by Heisenberg. So which is also called uncertainty principle of Heisenberg. Now bye. We will meet in our next lecture.